Hello, students. Welcome back to Nationalism in Europe. And now, our topic is a new conservatism after 1815. So, first thing, we need to find out the meaning of conservatism. We know it is after 15, but they have used a word new. So, difference क्या होगा? So, let's check out what is conservatism. This is the meaning, a simple, direct meaning which you can jot down as an answer. A political philosophy, please understand, they might change the question, they might twist a bit. So it's a political philosophy that stress the importance of tradition, established institutions and custom, and preferred gradual development to a quick change. पढ़ने में बहुत बड़ा लगा, है बहुत छोटा सा. People with old mentality who do not want the changes, or rather they are okay with slow changes, not like radicals who want immediate changes, not even like liberals who want changes. They are okay with what is happening in the society or what had happened. In short, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. They do not want to come out of it, and if they come, they want a slow change, not the quick one. What was happening in Europe? अब see, European government everywhere by 1815. So we are in 1815 और European government they are driven by this spirit of conservatism. तो हर एक को ये लगने लगा कि I think we were better previously. So whatever the changes has come in Europe, they are not going with the society and we are not liking it. आप देखिए, ध्यान में रखिए कि what had happened. अब तक नेपोलियन है and he has conquered almost every country of the Europe or the smaller or the bigger empires. तो वो changes में this is what the people are thinking. Conservatives believed that established traditional institution of state and society like monarchy, clergy, social hierarchy, property and the family, everything should be preserved. In short, these words, monarchy, church, social hierarchy, first estate, second estate, third estate, everything what was there should be preserved. आपको नहीं लग रहा था going back, पीछे जा रहे हैं? Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. See, they were happy, they wanted that the society should be old traditional, but not before French Revolution. See here when they are saying the revolutionary day, they are saying not before French Revolution. Rather, they realize whatever the changes initiated by Napoleon are good because these modern changes are leading the society on the path of progress. तो प्रोग्रेस भी चाहिए आपको, पर आपको ट्रेडिशनल वे में चाहिए, इसलिए आपको प्री रेवोल्यूशनरी डेज से पहले की सोसाइटी नहीं चाहिए. बट हाँ, जो रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, जो सिस्टम था, वो आपको चाहिए. ये आपके डिमांड है. देखिए, कॉन्जर्वेटिज्म इज नथिंग, इट्स एन आइडियोलॉजी. आप सोच रहे हो कि क्या है, तो लोगों की आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर हम ये बातें कर रहे हैं. नाउ how it will happen? See, if you have old tradition with this modern changes, whatever brought by Napoleon, will be more effective and strong. It will give state that power which is required. State यहाँ पर country के हिसाब से बोला जा रहा है. A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism, serfdom, this everything will strengthen autocratic monarchy. देखिए, आई वॉज एन मोनार्क, एब्सोल्यूट मोनार्क. जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, वो रूल पास करता हूँ, जिसमें सर्फडम है, मैनोरियल ड्यूज है और इकोनॉमी जो है वो उतनी स्टेबल नहीं है. बट देन ये सारी चीज़ों को अगर मैं सुधार दूँ और राजा रहूँ, आई थिंक आई विल बी लव्ड बाय पीपल. दिस इज व्हाट दे वांट. और आप सोच ही सकते हो कि ये चाहने वाले हैं कौन ज़्यादातर? दे आर क्लर्जी एंड नोबिलिटी. ज़्यादातर सेक्शन वही है. Representative of European power, especially these countries, Britain, Russia, Prussia and Austria, they collectively defeated Napoleon. अब यहां से आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है. एक आएगा सिंपली ट्रीटी ऑफ वियना, एक आएगा हाउ कंजर्वेटिव रिजीम वाज सेट अप इन यूरोप आफ्टर 1815. तो आपको यही टॉपिक लिखनी है. तो कितने पावर्स हैं? Because please understand, then I'll give you a smart way to remember all these things. So Britain, Russia, Prussia and Austria, they defeated Napoleon collectively at the Battle of Waterloo. ये कोई वाटर पार्क नहीं है, ये बैटल फील्ड है.
तो नेपोलियन हार चुके हैं, हारने के बाद ये देयर हैज टू बी अ ट्रीटी, तो ट्रीटी वाज साइन एट वियना, वियना जो कि ऑस्ट्रियन कैपिटल है। ओके, आई जस्ट वांट टू शेयर अ फैक्ट, दिस ट्रीटी वाज सपोज्ड टू बी साइंड एट वर्साई, बॉस वर्साई जो है ना वो नेपोलियन का गढ़ है, वो उनका पावर हाउस है, एंड इज लव्ड इन फ्रांस, दैट्स द रीजन व्हाई दिस ट्रीटी जो जगह है वो शिफ्टेड टू वियना। वियना जो है ऑस्ट्रियन कैपिटल है, और यहां पर जो कांग्रेस है, द मीटिंग पार्टी इज होस्टेड बाय ड्यूक मेटरिंच। बस ये नाम आप याद रखिए, चैप्टर में 2-3 बार आएंगे, जितनी बार ये नाम आए गए वो कुछ इंपॉर्टेंस ही लाएंगे, और हर बार ये नाम एक क्वेश्चन होगा, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट। सो दिस कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरिंच। अब देखते हैं कि ट्रीटी हुई कब। बॉस बहुत छोटी सी चीज़ है, दिमाग में ये रखिए कि ट्रीटी है तो जो हारने वाला है वो पे करेगा, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साई हमने पढ़ा था ना नाजिज्म में, द सेम थिंग हियर, बट हियर इट इज वियना, प्लेस क्लियर है। सो ट्रीटी ऑफ वियना। अब हुआ क्या ट्रीटी में, देखिए, बर्बन डायनेस्टी विच वॉज डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज बॉट बैक। ये कौन से बर्बन है, ये लुई 16 वाले बर्बन डायनेस्टी है, तो ये वापस से आ गए हैं, फर्स्ट थिंग। और ये कौन है, राजा हैं। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, तो जितनी टेरिटरी फ्रांस ने कॉन्कर की थी वो सारी वापस ले ली गई। अब वापस ली गई और उसके पीछे का रीजन देखिए क्या, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस, क्यों, टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन इन फ्यूचर। बॉस नए कंट्री बना दिए फ्रांस के बॉर्डर पे या बाउंड्री पे, इसलिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर एक्सपांशन हो तो उन्हें और ज़्यादा लड़ाइयाँ करनी पड़े। तो ये इनकी थॉट प्रोसेस है इस ट्रीटी के वक्त, बांट रहे हैं कंट्री को। किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। ये जो डिवीजन हमने कहा ना कि न्यू स्टेट्स केम अप, तो कौन से आए, किंगडम ऑफ नीदरलैंड विद बेल्जियम एज इट पार्ट, तो ये एक नॉर्दर्न फ्रांस का एरिया है। दूसरा चीज, फिर साउथ में भी कुछ होगा डेफिनेटली, तो साउथ में जेनोआ वॉज एडेड टू पिडमॉन्ट इन दी साउथ। अब ये पिडमॉन्ट जो है वो नॉर्थ ऑफ इटली है और उसमें जेनोआ ऐड कर दिया, तो एक और स्टेट बना दी। देखिए फ्रांस है, उसका डिवीजन हो रहा है। अब किसको क्या मिलेगा, वी नीड टू रिमेंबर दैट। यहां पर आप देख लीजिए जेनोआ, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली एंड सदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस। प्रशिया, 4 कंट्री याद है, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन एंड रशिया। अब सब कुछ ना कुछ लेंगे। प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट टेरिटरीज, न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। देखो बॉस, लॉजिक बहुत सिंपल है। आई एम स्टैंडिंग हियर, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई राइट हैंड साइड, योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड। सो इफ अ ट्रीटी इज साइंड, आई एम श्योर यू वोंट बी गेटिंग अ थिंग ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, यू विल बी टेकिंग द थिंग ऑन माई राइट हैंड साइड। तो जो जिसको बाउंड्री करेगा वो जगह उनको मिलेंगी, ये आपको ध्यान में रखना। तो आप बहुत आसानी से ये जो बड़ी सी टॉपिक है याद रख सकते हो। तो ऑस्ट्रिया को क्या मिला, ऑस्ट्रिया गॉट द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। अगर आप मैप में देखोगे तो देखिए ये रिपब्लिक ऑफ वेनिस है, ये इटली का पार्ट है, लेकिन अगर ऊपर जाओगे स्विट्जरलैंड और ये ऑस्ट्रिया है, तो ये नॉर्दर्न पार्ट जो है ना वो उनको मिला है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली वेंट टू ऑस्ट्रिया। अब देखते हैं और रशिया को क्या मिलता है। बट जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट वॉज अनटच, वो किसी ने नहीं लिया। वहां जो है प्रिंसली रूल है वो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। रशिया वॉज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड विच वॉज वेरी क्लोज टू रशिया, और जो रशिया के जो वेस्टर्न फ्रंट पे है तो इसलिए उनको पोलैंड मिल गया। प्रशिया वॉज ऑल्सो गिवन पार्ट ऑफ सैक्सोनी। दीज आर दी रीजन। ये आपको ट्रीटी ऑफ वियना के पूरे डिविजन्स बताएंगे इस मैप में। अब सबसे मेन इंटेंशन यहां पे क्या है, देखिए रशिया इज अ मोनार्की, प्रशिया इज अ मोनार्की, ऑस्ट्रिया इज अ मोनार्की, ब्रिटेन इज अ मोनार्की। नाउ फ्रांस, विच रूल केम बैक, मोनार्क। नाउ नीदरलैंड, किंगडम ऑफ नीदरलैंड, हुज रूल, मोनार्क। नाउ इटली, किंगडम ऑफ इटली, हुज रूल, मोनार्क। So who is ruling the whole Europe? Monarch. What is the topic? Conservatism. What do conservatism want? They want old system of governance. Who should be the head of government? King. So this is what they have done. This is how a new conservative order was restored in Europe. This becomes one question. Now and a major question. तो एक ये question आएगा, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना आएगी,
आप सिंपली याद रखिए किसको क्या मिला, कब ट्रीटी साइन हुई, किसके बीच में साइन हुई, आपका आंसर डन, एब्सोल्यूट राइट एंड इजीएस्ट वे। अब सब जगह राजा आ गए, कंजर्वेटिव रिजिम सेट हो चुकी है। देखते हैं अब यूरोप में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना को ही थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ये ट्रीटी ऑफ वियना नहीं है, ये आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना जब आपके कंट्रोल हो जाती है तो ये कंजर्वेटिव रिजिम है, ये कैसी है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, एनी डिसएग्रीमेंट एंड क्रिटिसिज्म अगेंस्ट दिस न्यू गवर्नमेंट विच केम। कौन सी गवर्नमेंट? कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। सो दे डिड नॉट लाइक इट, जो पसंद नहीं आएगा देन आई विल पास सेंसरशिप। तो दे इम्पोज्ड censorship. Everything what is said in newspaper, books, play, song and whatever reflected the idea of liberty, freedom were censored. बस तभी आप मेरे अगेंस्ट चले जाओगे ना। Now question is, why were they so autocratic? As they are saying, autocratic मतलब अपनी मर्जी के रूल वाले। क्यों? रीजन बहुत सिंपल है। देखिए, आप घूम फिर के आपने सब कुछ ट्राई कर लिया। यू ट्राइड डेमोक्रेसी, पहले नेशनल असेंबली आई फ्रांस में, नेशनल असेंबली के बाद कॉन्वेंशन गवर्नमेंट आई मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर की, फिर डायरेक्टरी रूल आया, फिर डिक्टेटर आया, सब कुछ ट्राई कर लिया। फिर आपको लगा कि नहीं कुछ अच्छा नहीं है, फिर से राजा के पास चलते हैं और उस हिसाब से ना कॉन्जर्वेटिव रिजिम सेट कर ली। तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना कि बस अब फिर से राजा के पास आया, दैट मीन्स वी आर दी ओनली होप यू हैड। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो हाई होगा ही और मैं आपको फिर उस हिसाब से ट्रीट भी करूंगा, इसीलिए बहुत ऑटोक्रेटिक थे। बट कुछ भी हो, वंस यू गेट टू नो व्हाट इज डेमोक्रेसी, वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यू नेवर लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो दे आर सेइंग हियर द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन nonetheless continue to inspire the liberals. Obviously, in every country, everywhere, if conservatives are there and they are coming to power, liberals still continue to fight to bring the change in society. And one of the major issues taken up by the liberals during the nationalist movement in all these countries was abolition of censorship. क्योंकि देखिए सब कुछ इसी पे डिपेंड है। जब आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलेगा, then you will express your views. You will reach out to the masses and then they will understand. If not you bring change in their mentality, at least they will think differently. So the liberal nationalists everywhere in the Europe wanted to have freedom of press, because if I want to reach to masses, if I want to bring changes, I need to have freedom of speech. और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेरा freedom of speech जो है मुझसे छीन लिया गया है। सो अब चेंजेस तो और आने बाकी हैं, ये तो बस एक चेंज है विच दे आर डिमांडिंग। बाकी के सारे चेंजेस के लिए यू वेट, बट कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग। सी यू।